अब आ जाते हैं फंडामेंटल राइट्स में, दैट इज 1213 तो बात कर रहा था सम क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट. आर्टिकल 14 onwards we see what has been identified by our constituent assembly by our constitution to be fundamental rights. Make sense? In this regard हम क्या देखते हैं? We have a range of rights. सबसे पहले तो है राइट टू इक्वालिटी. इट इज कवर्ड फ्रॉम आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18. Right to equality is discussed in details in these articles. How exactly we look at right to equality. Then we will discuss about right to freedom, जिसको हम right to liberty भी बोल सकते हैं. Right to freedom, right to liberty is discussed in 19, 20, 21, 22. Then right against exploitation. That is, child labor is not allowed, human exploitation is not allowed, slavery is not allowed. This is covered in Article 23 and 24. Then in detail we discuss about right to freedom of religion, which is discussed in 25, 6, 27, 28. So right to freedom of religion is given in these articles. Then special cultural and educational rights for minority, Article 29 and 30. And then we have Article 32 that discusses our power to go to Supreme Court, our fundamental right to go to Supreme Court in the event our fundamental right is getting violated. That means we will get a remedy by the Constitution with respect to anything that state is doing that violates our constitutional rights. Anyone not able to understand what I'm saying? सही बात? So this is the way in which we are having all fundamental rights. हमें करना क्या है? एक एक करके सबको समझना है. We will start with right to equality 14, 15, 16, 17, 18. राइट टू इक्वालिटी वो क्या बोलता है? राइट टू इक्वालिटी एसेंशियली इज, अच्छा ये तो वही वापस लिख दिया. फाइन. आर्टिकल 14 it says that in India everyone is going to have right to equality, to put it very simply, and there will be two things that will happen simultaneously: equality before law and equal protection of law. समझ में? We essentially are going to have what? We are going to have both equality before law and equal protection of law. मीनिंग क्या है समझते हैं? बढ़ाना है? हाँ बट नाउ बेटा ठीक है. So we're saying equality before law, equal protection of law. What we are trying to achieve, what exactly is the idea? The idea is now we are a democratic country, we are an independent country, and we would want there should exist equality for all. In this respect, equality before law is what we call as rule of law. Rule of law. What is rule of law? Rule of law is a concept that was given by A.V. Dicey. He was a professor in England, and he says that we are truly an equal society if at all everyone is equal before the law. The people who make the law will be subjected to the same law, and all the people on whom the law is going to apply, it is applied equally on all. समझ में आया? With example, let's say Parliament today makes a law with respect to say murder. Even if a parliamentarian is committing a murder, बात समझ में नहीं आई? That is, they essentially will be subject to the law in the same manner. In the same manner, in the same thing, it can be that you might be the richest person of India, you might be the poorest person of India, you can be from upper caste, you can be from lower caste. Law will apply to you in a uniform and same manner. किसको नहीं समझ में? That is rule of law. No one is above the law. Law will be same for everyone. Is it clear? Then we also have equal protection of law. ये क्या कहता है? ये कहता है that in any society, more so in Indian society, people in itself, that is people by and large are not equal. अब जब जनता में समानता इक्वालिटी ही नहीं है, the very idea that we are going to subject you to equal laws in itself will perpetuate inequality. हम तो इनइक्वालिटी को बढ़ावा दे रहे हैं अगर हम जो लोग बराबर ही नहीं है उनसे बराबरी का कानून लगा रहे. बात समझ में नहीं आई?
फॉर एग्जाम्पल मैंने आई थिंक एग्जाम्पल बोला होगा कि अगर एक 14 साल से छोटा बच्चा है, इट कैन नॉट बी दैट यू आर ट्राइंग टू मेक हिम प्ले विद विराट कोहली. I hope you have to understand the point. You need to have different categories of people based on their age group. That's a way by which you are being fair to them. किसको नहीं समझ में आता? The whole idea is that it cannot be that we are having uniform laws for every person for the reason people in itself are not equal. जब innately inequalities है, you will need to keep in mind the fact that people are unequal and for people who are equally placed, उनके लिए equal law होना चाहिए. समझ में आया नहीं है? किसको नहीं समझ में आया? The idea is what? That we essentially will need to first classify people based on their backwardness, identify their backwardness, and based on their backwardness, we need to give them affirmative action. And all the people who are equally backward should be given equal affirmative action. समझ में आया? इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, राइट? लेट्स से देयर इज अ क्रिकेट मैच दैट इज गोइंग ऑन. ठीक है, यहाँ पे खिलाड़ी खेल रहे, एंड देन एक नया भी बना लेते हैं. लेट्स से देयर इज अ क्रिकेट मैच दैट इज गोइंग ऑन. ठीक है, people are playing. In this regard, there is a wall over here. There are different people who are trying to watch this match. 3D में इमेजिन कर पा रहे हो ना? नहीं कर पा रहे? गिर नहीं रहे ये लोग, टेढ़े देख रहे हैं. इज इट क्लियर? पक्का? A, B, C, D. In this regard, ये wall है बीच में. Who is taller? A and B. A is taller. यहाँ पे for clarity, to be able to watch the match is to enjoy the social good. सोसाइटी का जो गुड है, सोसाइटी के जो बेनिफिट्स है, वो इस बात से है दैट यू आर एबल टू वॉच दिस मैच. इन दिस रिगार्ड, इज ए एबल टू वॉच दिस मैच? यस. बी एबल टू वॉच दिस मैच? यस. अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है. ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहां पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस. इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं. और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं. और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहां पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है. तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका. साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40+ सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स. सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें. अनअकैडमी IS, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. थैंक यू. That means even though B is smaller than A with respect to height, his decrease in height, his lesser height is not coming the way by which he can get opportunity to get social good. मानते हो? हाँ या ना? मतलब इसकी हाइट भले ही कम हो, बट इसकी कम हाइट इस बात की रुकावट नहीं है कि वो मैच ना देख पाए. मैच तो देख पा रहा है. इज इट क्लियर? पक्का? अच्छा. इज सी एबल टू वॉच दिस मैच? नो. अगर आप सी को इतना स्टूल दे दो, then will he be able to watch this match? Yes. तो अगर आप यही स्टूल नीचे रख दो इसको, then he will get a affirmative action, he will get a push. अब मैच दिख रहा है, बट उतना ही affirmative action दो जिससे मैच दिखना चालू हो जाए. His point of reference cannot be A कि नहीं तुम अंबानी बना देना है उसे, नहीं. आइडिया ये है, द फैक्ट दैट यू essentially are backward because of your height should not come in the way by which you're able to get equal opportunity to absorb social good. समझ में है? अगर यही स्टूल उठा के डी को दे देते हैं तो क्या ये देख पाएगा? नहीं देख पाएगा ना. दैट मीन्स वन कैन अंडरस्टैंड कि इतना गुड, इतना अफर्मेटिव एक्शन से ये दिख पा रहा है, बट इट विल ऑल्सो नॉट बी फेयर कि आप यही इसको दे दो, क्योंकि इसको देखने के लिए तो इतना बड़ा स्टूल चाहिए, राइट? इन दिस रिगार्ड, जब आप इतना बड़ा स्टूल इसको दे दोगे, देन ही इज एबल टू वॉच द मैच. दैट मीन्स it may appear as if A and B is not getting a stool, C and D is getting a stool. That means we are not practicing equality. But if you think about it, we are being fair to everyone. Anyone not able to understand the point है? बोलने को तो आप ये बोल सकते हो कि यार A and B को तो स्टूल मिला ही नहीं,
इनइक्वालिटी हो रही है. But actually, that is not what we are trying to do. What we are trying to do is A, B, C, and D all should be able to get the social good. सबको मैच दिखना चाहिए. Is it clear? बोलने को ये बोल सकते हो सर D वाला स्टूल C को क्यों नहीं दिया? Because then it would be that C is getting more than what is required for him to get equal access. बात समझ में नहीं आ रही? Anyone not to understand the point? बोलने को ये बोल सकते हैं सर B की भी हाइट तो A से कम है, इसको भी मिलना चाहिए. बिल्कुल नहीं. The idea is that we essentially are not in the business of ensuring that you're equal to A. We are in the business of ensuring that your backwardness should not come in the way of getting benefit that you should get. Opportunity आपकी कम नहीं होनी चाहिए. Are you understand? अब इसको समझना. अगर ये स्टूल B को दे दिया गया, it will be violation of rule of law. Why? For the reason B को जरूरत नहीं थी, आपने फिर भी उसको दे दिया. अगर आपने D का स्टूल C को दे दिया, that also will be violation of rule of law. आपने C को जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा दिया. What was required for C, what you gave him was lot more than that. ये बात समझ में नहीं आ रही. एंड अगर C and D को अफर्मेटिव एक्शन ही नहीं मिला, that will be violation of their equal protection of law. Anyone not able to understand the point? Is it clear? पक्का? In this regard, try to understand all the people who are equal to C, उनको exactly same stool मिलना चाहिए. All the people who are equal to D, उनको exactly same size of stool मिलना चाहिए. And any person who is able to see above this wall by themselves, उनको stool की जरूरत ही नहीं है. It doesn't matter कोई AZ है जो और भी लंबा हो, कोई बात नहीं. Is it clear? इस चीज को इंश्योर कर पाना इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. अब ध्यान से समझना, शेड्यूल कास्ट होता है, राइट? सुना होगा आपने. इसमें अगर आप देखो तो बहुत सारी कास्ट है. इट इज नॉट कि हम लोग बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कास्ट है जिसका नाम शेड्यूल कास्ट है. बहुत लोगों को ये लगता है, जिनको नहीं पता. देयर आर नंबर ऑफ कास्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट एवरीथिंग. The only thing that we have done is we have identified these sections to be people who based on caste are actually backward. And उन सबको एक क्लब में रख दिया, एक कैटेगरी में रख दिया, शेड्यूल कास्ट. लॉजिक ठीक है? And that is how we essentially are saying all the people who are in this category called schedule caste, we are giving you affirmative action because you are backward. किसको नहीं समझ में आया? Is it clear? पक्का? ठीक है ना? Equity. देखो, equity is a principle that says everyone should not be given equally. We need to understand how much everyone requires, and based on that, we essentially should be giving them what they should get. It can be, but the point is, equity need not be that you are able to provide justice at all times. It's a step towards justice. यहाँ पे हम लोग बात क्या कर रहे हैं? Affirmative action to an extent by which we are able to establish equality of opportunity. Are you able to understand the difference? कहने का मतलब ये है कि अगर आप डी को छोटा स्टूल भी दे देते तो भी इक्विटी होता. लेट्स से यू एसेंशियली वर हैविंग ओनली 2 स्टूल्स जो इसी साइज के हैं, तो आप किसको दोगे? सी एंड डी को दोगे. बट द पॉइंट इज डी अभी भी नहीं देख पा रहा मैच. आपने इक्विटी का प्रिंसिपल तो फॉलो किया, बट यू वर नॉट एबल टू एंश्योर जस्टिस. इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स जस्टिस बट नॉट जस्टिस. When you talk about equal protection of law, it is about identifying exact backwardness and giving affirmative action by which you are able to guarantee equal access to opportunity. में difference समझ में ना? Slight difference. Equity is a principle which says that if at all I have resources, it cannot be that I'm distributing it based on what everyone wants or equally. Equity means I need to understand who requires this the most and I'm going to give it to him. That is equity. यहाँ पे हम क्या अचीव करना चाहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में? हम अचीव ये करना चाहते हैं दैट वी आइडेंटिफाई टू व्हाट एक्सटेंट यू आर बैकवर्ड and to what extent we need to give you affirmative action by which you are able to get equal access to opportunity. Equity is just a tool. This is a philosophy. अभी समझ में नहीं है? नहीं आया तो बताओ ना. Beautiful. ठीक है ना? Clear for everyone? Fine. अब अगर आप इसमें सोचोगे, सर सुनने में तो अच्छा लग रहा है, but the point is, sir, that means that you are saying there can be ways in which we can give affirmative action. We can give affirmative action in a manner by which we are sort of uplifting people. But the point is, इसमें तो politicize होने की बहुत संभावना है. मेरी बात समझ में नहीं है? You essentially will have what? कि यार बिहार में elections है,
let's say Punjab में elections है, Maharashtra में elections है, we will just say that you are backward and that is why we need to give you affirmative action. हो सकता है नहीं हो सकता? In this regard, we have to have some way by which we are able to have some logic to it. अब इसको समझना. The idea is that Supreme Court is in the business of ensuring everything happens as per the Constitution, and in this regard, it should happen logically as per the Constitution. अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ये भी नहीं चाहता दैट वी इसेंशियली आर हैविंग व्हाट एवरी जज हैविंग एवरी ओपिनियन. हो सकता है मेरे पास केस है, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ, मेरा कुछ ओपिनियन है, ये सुप्रीम कोर्ट की जगह इनका कुछ ओपिनियन, ऐसे करते करते हर एक का अलग अलग ओपिनियन है. वी डोंट वांट दैट, एंड दैट इज व्हाई वी डेवलप व्हाट इज कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन्स. डॉक्ट्रिन्स क्या है? प्रिंसिपल्स. Principles that essentially is like a formula that will be allowed to ensure things are happening as per the constitution or not. समझ पा रहा नहीं आ रहा? Application or development of these doctrines and application of these doctrines will ensure uniformity. कि अगर doctrines आप में जो भी अलग अलग है वो ठीक से लगा रहे हैं, we should get आसपास का result या same result. And that is how Supreme Court tries to do what? Ensure the things are happening as per constitution or not. And यहाँ पे बहुत ज़्यादा possibility है चीज़ें गलत होने की इस वाली चीज़ में आर्टिकल 14 में. कैसे? सोचो. First and foremost, there can be different ways in which we are. Kripat? Announcement. Okay. So we essentially are having an history optional orientation. आज कौन सी डेट है? 4 June. आज ही है 4 PM and we have it at Chroma building. All the people who essentially interested in history optional, please to attend this session. I'm not sure आपको पता ही पता, कृतिका मैम is by far the best teacher we have for history in India. तो अगर हिस्ट्री ऑप्शनल में आप इंटरेस्टेड हो टू अटेंड सेशन ऑफ कृतिका मैम. ठीक है. कमिंग बैक, अगर आप सोचो देर आर सो मेनी वेज इन विच इट कैन बी अब्यूज दिस प्रोविजन. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट कैन से that you know what, top 1% of India, top 0.1% of India are people who essentially are backward. Why? For the reason these are people who are paying maximum tax. ये बेचारे करोड़ों में टैक्स देते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू गिव देम अफर्मेटिव एक्शन. आप बोलोगे तो बड़ी आर्टिफिशियल से बनाई है आपने, ये क्या लॉजिक है? बात सही नहीं सही है? In the same manner, let's say for the sake of example, all the girls who are having slightly big nose, it's a kind of backwardness, and we would want to give free rhinoplasty to all the girls. Rhinoplasty मतलब nose surgery. बोली सर ये भी बड़ी आर्टिफिशियल सी बैकवर्डनेस है. The point I'm trying to say is, it becomes very tricky to understand how exactly we essentially are understanding backwardness and what is the affirmative action that we must provide. समझ पा रहे नहीं आ रहा? In this regard, Supreme Court said that we are developing what is called as what? Right to doctrine of equality, जिसको हम बोलते हैं doctrine of reasonable classification. This doctrine of equality and doctrine of reasonable classification is something that will be the basis on which we'll see whether whatever affirmative action that you're providing, is it valid or not. किसको नहीं समझ में है? Are you understand? हाँ या ना? In this regard क्या है? उन्होंने बोला कि भाई सबसे पहले हम देखेंगे what exactly is the way by which you essentially are defining backwardness. पहले हम देखना चाहते हैं आपने backwardness को define कैसे किया है. For example, आपने बोल दिया भाई backwardness is poverty, ठीक है, but then we would want absolute clarity with respect to how exactly do you define poverty, and we would want you to give us proper definition of who exactly will be included and not included in this definition of poverty. एक example लेते हैं. Example क्या है? Which is the poorest state of India? Right now, Bihar. So a policy of the government is, because Bihar is a poor state, we would want to give what? We would want to give 1 lakh rupees to every person who is from Bihar. Problem क्या है स्कीम में? नहीं, लॉजिक ठीक है, बिहार इज अ पोर स्टेट. अफर्मेटिव एक्शन क्या है? एवरी पर्सन बिहार विल बी गिवन 1 लाख रुपीज. एग्जैक्टली. लॉजिक क्या हो रहा है कि yes, Bihar is a poor state, but every person living in Bihar need not be poor. But the policy that you're creating is not bringing clarity with respect to who is and who isn't included. बात समझ में आई नहीं है? आपको ये बताना चाहिए, और we have defined poverty to be any person who's earning less than 50 rupees per day, let's say, and all the people who's earning less than 50 rupees, they will get this benefit. अब क्लियर हो गया? क्लियर क्या हो गया? Who exactly is getting included, who's not getting included, and we have actually have objective clarity as to what exactly is the backwardness that you're identifying. समझ में आया नहीं है?
आइडिया ऑब्जेक्टिव क्लैरिटी, गरीब को दे दे, अरे कौन है गरीब, मुझे लगता है मैं गरीब हूँ, राइट, हो सकता है अक्षय कुमार को लगे वो गरीब है, पिक्चर किया जाता है वो। आइडिया क्या है, आइडिया कि गरीब तो हर को लगता है, नो यू हैव टू गिव ऑब्जेक्टिव क्लैरिटी, वेगनेस नहीं होनी चाहिए। सेकंड थिंग क्या है, वी आल्सो वुड वांट यू टू गिव क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू हु इज गेटिंग इंक्लूडेड एंड हु इज नॉट गेटिंग इंक्लूडेड। ये क्लैरिटी भी आपको आपके प्रोविजन में साफ साफ आनी चाहिए, यहाँ तक समझ में आया। अब इसी को और अप्लाई करके देखते हैं। यू हैव व्हाट, विमेन के लिए रिजर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट बोगी ऑफ मेट्रो ट्रेन, हु इज इंक्लूडेड, women, who are not included, who are not women. Is a Dalit man can get into that train? No. Rich man, poor man, doesn't matter. Rich women, poor women, that too doesn't matter. Anyone who is a woman can enter. So I hope you're able to understand there's absolute clarity with respect to who is getting included, who's not getting included. Reservation का objective क्या है? We would want safe travel for women. तो जो आपने वो बनाई है, स्कीम बनाई है, मेक सेंस, किसको नहीं समझ में आता? इज इट क्लियर? पक्का? ठीक है, यहां तक तो होगी पहली बात। दूसरी चीज इन दिस टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन हम क्या देखेंगे, ध्यान से समझना। वी विल लुक एट व्हाट एग्जैक्टली इज द बेनिफिट दैट यू आर गिविंग टू पीपल दैट यू हैव आइडेंटिफाइड एज बैकवर्ड। आप क्या बेनिफिट देना चाह रहे हो उन लोगों को जिनको आपने बैकवर्ड आइडेंटिफाई किया है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ही इज नॉट हैविंग अ पेन, ही इज नॉट हैविंग अ पेंसिल, ऑल ऑफ यू आर हैविंग व्हाट, 2 पेन, पेंसिल, पेन, अलग अलग प्रोपोर्शन में। तो इनकी बैकवर्डनेस क्या हमने आइडेंटिफाई की, नॉट एबिलिटी टू राइट। सेकेंड कंडीशन ये बेनिफिट ऐसा होना चाहिए जो बैकवर्डनेस को रिमूव करे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं कि क्योंकि इनके पास नॉट एबिलिटी टू राइट है इसलिए मैं अब इनको दे रहा हूँ पानी की बॉटल फ्री में। प्रॉब्लम समझ में आई? प्रॉब्लम ये है, ठीक है, यू आर मीटिंग द फर्स्ट कंडीशन बट योर सेकेंड कंडीशन में जो बेनिफिट बना रहे हो इट इज नॉट इन नेक्सस विद द बैकवर्डनेस दैट यू हैव आइडेंटिफाइड। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द पॉइंट। That means by benefit will need to be something that gives him ability to write. It can be a free pencil, a free pen, subsidized pencil, subsidized pen, but it cannot be what? It cannot be that I'm giving him anything which has nothing to do with writing. बात समझ में आई नहीं है? अब इसी में समझना EWS रिजर्वेशन में पंगा क्या चल रहा था। EWS रिजर्वेशन क्या पता नहीं पता? इसमें आपने क्या बोला that well what exactly is the backwardness that we have identified? Economic backwardness. What should be the benefit that we must create? Economic empowerment. What is the tool to bring economic empowerment? Free education, free books, scholarship, money. That is the idea. But what exactly is the benefit we gave? Reservation in admission in schools, reservation in jobs. ये तो social upliftment के tools है ना, नहीं समझ में आया? These are ways by which we are able to uplift you socially with respect to social status. The argument was that economic weakness is a legitimate type of backwardness. उसमें कोई problem नहीं है. But the benefit that you're creating is not something which is linked with what we identify as your backwardness. Logic ठीक है? Counter argument गवर्नमेंट ने क्या दिया था? गवर्नमेंट ने बोला था कि देखो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिजल्ट्स इन सोशल बैकवर्डनेस। अगर मान लो कोई बच्चा शुरू से गरीब है, there is a very high chance that he was victim of all sorts of diseases like dengue because protection नहीं थी घर में. He was not able to get fair opportunity to study well. He was not able to get tuitions. He was not able to afford this. घर के 4 काम होते थे. Over a period of time, because of your economic backwardness, you essentially were limited with respect to opportunities that you're getting. And that is why by the time you essentially are in 12th standard, we need to give you some affirmative action for the social backwardness that you have faced. अब इस आर्ग्यूमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, बात समझ में नहीं आई। बट आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वर दे आर्ग्यूइंग। दे वर आर्ग्यूइंग कि सेकंड कंडीशन मीट ही नहीं होती, दैट यू आर गिविंग व्हाट, इकोनॉमिक बेनिफिट, यू आर गिविंग सोशल बेनिफिट फॉर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। किसको नहीं समझ में आई मेरी बात? इज इट क्लियर? फाइन। थर्ड कंडीशन, चलो उसको बाद में देखेंगे, यहां तक समझ में आ गया? इज इट क्लियर? एक बार आर्टिकल 14 देखते हैं और डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन के नोट्स लेते हैं। रूल ऑफ लॉ से चालू करते हैं। Before looking into right to equality, what exactly we need to know? What do we mean by rule of law? Rule of law is a concept that originated in UK and it has number of components. Number one, absence of arbitrary power. ये सब कुछ एवी डाइसी, ये है एवी डाइसी, इन्होंने बताया था, कहाँ गया?
एवी डाइसी इन्होंने बताया था। एब्सेंस ऑफ आर्बिटरी पावर, रूल ऑफ लॉ क्या होता है? एवरीथिंग इज एज पर लॉ, एवरीथिंग इज एज पर लॉजिक एंड देयर इज नो आर्बिटरीनेस इन द वे इन विच लॉ दैट इज पावर इज बीइंग एक्सरसाइज्ड। तुमको उठा लिया, क्यों मन किया, ऐसे नहीं होना चाहिए, देन देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। व्हाई एग्जैक्टली पीपल क्रेव फॉर यूपी कार्डर, बिहार कार्डर, पता है? देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। एक मेरा स्टूडेंट है यूपी कार्डर का, आईएएस है, बहुत अच्छा बच्चा है, बट देन जैसा देश वैसा भेष। अब वहां पे एक लोकल जर्नलिस्ट ऊट पटांग लिखे जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सब झूठ झूठ झूठ, मतलब सेंसेशनलिज्म बोलते हैं जिसको, लोकल जर्नलिस्ट लोकल केबल टीवी पे। आज खुलासा करेंगे हम यहाँ की पुलिस का, कैसे पहुंच गए वर्दी के दरिंदे, इस तरीके से वो डाल रहा। अब इसको बार बार समझा रहे कि भाई हम वी आर गिविंग यू एविडेंस, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ही इज नॉट रनिंग वर्जन ऑफ द पुलिस स्टोरी, और वो ऊट पटांग चलाया जा रहा। अब उसको समझ में नहीं आया, अभी अभी वो बना है अफसर, तो उसको एक डीएसपी ने बोला सर आप मुझ में छोड़ दो। उसमें क्या किया, उसको पकड़ के रख दिया 2 हफ्ते जेल में, एकदम रिफॉर्म्ड निकला फिर वो। अपने आप वो कुछ नहीं चापता, उल्टा सीधा, राइट? आइडिया क्या है, देयर इज आर्बिटरीनेस इन द वे इन विच पुलिस एक्सरसाइज देयर पावर, बट पॉइंट क्या था, दैट इज द वे इन विच यू आर एबल टू गेट थिंग्स डन। बी दैट एसेट में, व्हाट इज आर्बिटरीनेस? That you essentially are able to exercise power without any cause, without any reason, without any explanation, without any accountability. जहां जहां arbitrariness होगा वहां वहां rule of law नहीं है. This is what AV Dicey is saying. Is it clear? Fine. Equality before law. All the people should be before the law. That is, everyone should be subjected to law in an equal manner. Third, primacy of rights of the individuals. What exactly is the idea? All the people who essentially are this, that is, on which the law has been made, you essentially will have to ensure that you are protecting certain individual rights, even at the cost of what exactly collectively people may believe. For example, right to freedom of expression. ज्यादातर लोग 99.98% लोग इंडिया के क्या है, रिलीजियस है. Let's say I'm a person who's atheist. In this regard, only I am atheist, then also it is the right, it is my right to remain atheist. रूल ऑफ लॉ तब होता है जब आप बेसिक इंडिविजुअल राइट्स को हमेशा सेंटर पे रखते हो. You at all times are protecting certain basic fundamental rights and you will never compromise it. That is also included as a part of rule of law. किसको नहीं समझ में आ रही यही बात? This is how he looks at rule of law. In this regard, rule of law is a basic feature of all modern democracies, constitutional democracies. The idea is everyone is below the law, even the king, ruler is below the law, no one is above the law. अब इसमें वो इंटरेस्टिंग चीज क्या बताते हैं, rule of law has certain characteristics. EVDIC. This is where a mains answer or other mains question can be asked. What exactly are the features of rule of law? समझ पा रहे? Rule of law में क्या बोलते हैं? Rule of law happens when there is universality. That is, law applies to everyone. There is universal application of law. आप ऐसे नहीं कह रहे राय बहादुर खान बहादुर इनके ऊपर लॉस नहीं लगेंगे. आप ये नहीं कह रहे अपर कास्ट पे लॉस लगेंगे, चौहानों पे लॉस नहीं लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. चौहानों पता ना, टुकड़ा के मेरा प्यार देखा नहीं, सर चौहान फैमिली थी, राइट? एंड यस, नहीं देखा क्या हॉटस्टार पे? कितने बजे इंस्पायर होते हो पिक्चर देख देख के? बताओ. यूनिवर्सैलिटी अप्लाइज टू ऑल. दैट इज, यूनिवर्सल एप्लीकेशन इज समथिंग विच इज अ प्री रिक्विजिट फॉर रूल ऑफ लॉ. नंबर 2, पब्लिसिटी, नो सीक्रेट लॉस. What do we mean by no secret laws? ऐसा नहीं होना चाहिए that you are creating some laws where you are promoting secrecy. For example, we have something called as Official Secret Act 1923. What is Official Secret Act 1923? Basically, it's a law that was created, of course, by Britishers, where public servant, an officer can deny information to you if at all that officer believes it is something which is important for the country. इसको secret रहना. इन दिस रिगार्ड हम लोगों ने एक आरटीआई बनाया था, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन. राइट टू इंफॉर्मेशन में देयर इज अ सेक्शन 8 सब क्लॉज 2 जो क्या कहता है, पब्लिक सर्वेंट्स कैन डिनाई इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई if at all they believe it should be hidden under Official Secret Act 1923. बात समझ में आई नहीं आई? In this regard, what exactly are we saying? What we are saying is, more we are having laws like these, less will be rule of law.
ऐसे कानून कम से कम होने चाहिए जो सीक्रेसी को प्रमोट करे, क्योंकि अगर सीक्रेसी को प्रमोट करेंगे तो होगा क्या, जो अच्छे कानून है उनका पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। मान लो यू आस्क्ड एन आरटीआई इन अ मैनर बाय व्हिच इट इज गोइंग टू गेट एक्सपोज कि कोई करप्शन चल रहा था, देयर इज सम करप्शन दैट इज गोइंग ऑन। इन दिस रिगार्ड ऑफिसर ने सोचा ये बता देंगे तो पकड़े जाएंगे, उसने बोल दिया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 दिस इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी गिवन। सो यू हैव डिफीटेड द पर्पस ऑफ आरटीआई। आरटीआई में आपकी उम्मीद थी कि बाहर आता, बाहर ही नहीं आएगा, लॉजिक ठीक है, एंड दैट इज व्हाट वी सी। देन प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ, दे शुड नॉट बी एनी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या समझना है, ये समझ में आ रहा है ना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं रूल ऑफ लॉ एज गिवन बाय एवी डाइसी। एवी डाइसी ने कुछ प्रॉपर्टीज बनाई हैं विद रिस्पेक्ट टू रूल ऑफ लॉ, राइट। उन्होंने बोला है कि लॉ शुड ऑलवेज बी प्रोस्पेक्टिव। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से यू आर राइटिंग विद ब्लू पेन, सब लोग लिख रहे हो ब्लू पेन से। इन दिस रिगार्ड आई एम मेकिंग अ लॉ, द लॉ इज बीइंग मेड ऑन 6th जून। लॉ क्या है, that any person who's writing with blue pen will be sent in jail for 3 years। क्या करोगे, ब्लू पेन से लिखना बंद कर दोगे। बट ऑन दिस वाइल वी आई एम मेकिंग दिस लॉ, मैंने बोल दिया दिस लॉ इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1st जून। मतलब ऑल द पीपल हु वर राइटिंग विद ब्लू पेन बिटवीन दिस पीरियड आर नाउ क्रिमिनल्स। अब आप बोलोगे सर जब लिखा था तब थोड़ी पता था ऐसा कोई कानून है, तो बाद में बनाया ना। वन कैन आर्ग्यू बिकॉज आई वॉन्टेड टू पुट यू इन जेल इज वाई आई मेड सच अ लॉ। My intent was not to stop people from writing with blue pen. My intent was I just want to see what you're doing because I don't like you, and that is why I made a law and applying it in a retrospective manner. Retrospective मतलब क्या, back date से apply किया। Logic समझ में आ रहा है? In this regard, this also is not allowed. This should not be allowed. Vladimir Putin, president है रशिया के, वो बदनाम है इसके लिए। He sees anyone who is protesting against him. वो पता लगाएगी 15 दिन में इसने क्या किया है, and then he will make a law, apply it in a retrospective manner and arrest that person। देखा जाएगा। Make sense? Idea क्या है? It's a way by which you essentially are taking away people's liberty. There should be consistency, no contradictory laws. No contradictory laws is a very important aspect of rule of law। क्या contradictory laws होते हैं इंडिया में, अभी भी है। For example, so we have a law that says अगर एक man that is male female है, if even if that is there is consensual sex that happens between man and a woman, and that girl is below the age of 18 years, the age is less than 18 years, man will be charged under rape। समझ में नहीं है, even if there is consensual sex that is happening, this activity is rape। समझ में, ठीक है, अजीब कानून है बट है। then with respect to Muslims, the whole idea is what, if at all you have acquired puberty, you essentially can get married। In this regard, girls get puberty by 15, 16. In this regard, at the age of 16, you can get married. If at all a girl is getting married at the age of 16, in this regard, what exactly will happen right after marriage sex? So you're having again a girl whose age is 16, below 18, but this is not rape। अजीब बात है नहीं, और प्रिंस है ना पॉइंट। एक और बिजार चीज बताता हूँ, इन इंडिया चाइल्ड मैरिजेस आर नॉट अलाउड, बट इफ चाइल्ड मैरिज अकर्स दे आर ऑल्सो लीगल। नहीं समझ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से देयर इज अ 13 ईयर ओल्ड बॉय, 13 ईयर ओल्ड गर्ल, और इनकी चाइल्ड मैरिज राजस्थान में तो होती है, राजस्थान से है, गोना हो गया। आइडिया क्या है कि वहां तो होती है। इन दिस रिगार्ड अगर पता चले शादी होने वाली है, पुलिस का काम है जाके रोकना, शादी मत कीजिए। बट अगर शादी हो गई, हाँ डालना अनलमेंट करते हैं ना, वो अलग, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसके लिए डालना पड़ता है। बट पॉइंट इज इट वाज आइडेंटिफाइड, जो विमेन है, अगर हम लोग इसको वो मान देंगे, शादी को गैर कानूनी मान लेंगे, तो विमेन के राइट्स वायलेट हो जाएंगे, क्योंकि समाज में विमेन को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। कीपिंग दैट इन माइंड, इफ इट ऑल a child marriage has occurred, women will get all the protections of wife, as such marriage will be termed as legal। Again the same question, हो तो वही रहा है ना, that you essentially are engaging in sexual activity below the age of 18 years, and all this process is not consistent।
ये सारा प्रोसेस में कंसिस्टेंसी तो कहीं नहीं है, किसको नहीं समझ में आता? एक है इंदिरा जयसिंह, बहुत बड़ी लॉयर है सुप्रीम कोर्ट की, ऐसे बहुत सारे केसेस वो अभी लड़ रही है सुप्रीम कोर्ट में, दैट यू हैव टू ब्रिंग अबाउट कंसिस्टेंसी, अदरवाइज देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। बात समझ में आई नहीं आ रही? इज इट क्लियर? जितने मतलब ज्यादा इनकंसिस्टेंसी होगी उतना कम रूल ऑफ लॉ होगा, दैट इज द आइडिया। इक्वालिटी, इट शुड अप्लाई टू ऑल इन एन इक्वल मैनर, इट कैन नॉट बी एनीवन इज अबव द लॉ। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मीन्स सर्टेनिटी ऑफ एप्लीकेशन। अब इसको समझते हैं। रेप, should there be capital punishment for it or not? बताओ, how many of you think there should be capital punishment for the act of rape? ठीक है, 1 2, नहीं बोल दो, कोई बात नहीं। rape, right? How many of you think there should not be capital punishment for the act of rape? यार ये क्या बात हुई? I am undecided है। तो चलो मान लेते हैं we have 50% of the people who believe they should and there are 50% who believe they shouldn't, right? In this regard, what exactly had occurred? We had what? We had a Justice Verma committee that was set up after Nirbhaya Act. निर्भया का जो हुआ था ना कांड दिल्ली में, पता है ना सबको? इन दिस रिगार्ड व्हाट हैड हैपेंड, इस जस्टिस वर्मा पैनल से बोला गया था यू गिव रिकमेंडेशंस एज टू व्हाट आर द अमेंडमेंट्स वी शुड ब्रिंग बाय व्हिच वी आर एबल टू मेक such crimes less frequent, rather we should be able to have laws which are more effective against such crimes। ये था, इन्होंने बोला रेप शुड नॉट हैव कैपिटल पनिशमेंट। व्हाई? अब इसको समझना। उन्होंने ये समझाया, लॉजिक समझना पहले, और ये लॉजिक एक्चुअली लॉर्ड मैक्यूले ने बताया था, द पर्सन हु एक्चुअली क्रिएटेड इंडियन पीनल कोड। तो लॉर्ड मैक्यूले क्या कहता था? रेप, मर्डर एंड robbery, these are crimes for which there should be capital punishment। Why robbery? Because he believed if at all we essentially are having a person who has made a living, made a fortune, made his own wealth over last 30 years in a proper manner by following laws, someone comes and he takes away all your wealth, that is a very big crime and that is why robbery को भी मानना चाहिए डेथ पेनल्टी। उस टाइम पे चलते भी डेकोइटी वगैरह बहुत होती है इंडिया में, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। बी दैट एज इट में, he argued although we would want to have that sort of death penalty or capital punishment for everything, we should not have it for rape and robbery, we need to have it only for murder। ऐसा क्यों? समझना, for any crime we would want a punishment। what is the purpose of punishment? To create a deterrence। deterrence समझ में आता है? deterrence मतलब ये कि आपको डर लगे क्राइम करने से पहले, you essentially should think 20 times 30 times कि पकड़े गए, this is the punishment I'm going to get। that means ideally deterrence will need to be something which is slightly more than the crime that you're doing so that it to be effective। यहाँ तक ठीक है? if at all for the crime there is no deterrence, will the crime increase or decrease? increase। ठीक है, अब आप सोचो, let's say there is a girl who is raped, जैसे ही रेप हो गया एंड वी आर हैविंग कैपिटल पनिशमेंट फॉर इट, तो उसको कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी इस बंदे को? मिलनी चाहिए ना, अगर पकड़ा गया तो। now tell me what exactly is stopping this man to kill this woman? नहीं समझ में आया? he did rape, now after the rape he has to understand should I kill this woman or not। in this regard, if at all there is capital punishment for rape, there is no deterrence for murder। if at all there is incentive for murder, जिंदा रही तो पकड़ा जा सकता हूं, तो मार ही देता हूं। नहीं समझ में आया? it will be that you end up what? Incentivizing people to commit murders, because the very moment you essentially have put capital punishment for rape, there is no deterrence left for murder। in this regard, you are actually doing injustice to this woman for the reason not only she was a victim of rape, you have incentivized the rapist to even kill this woman, because even if he's caught, the only punishment that he's going to get is murder, वो तो anyways मिल रही। आप समझे नहीं? तभी जैसे ही रेप किया तभी चाकू मार के मार दिया ना।
At the time when the rape was committed, at that time itself, we would think it makes sense. सुसाइड के केस में भी पहले पनिशेबल होता था सुसाइड करना, उसके बाद हटा दिया। Suicide to punish करना was a very stupid idea. हाँ, मतलब एक साइकोलॉजिकल वो भी हटा दिया था कि हाँ, वो तो हटा दिया था, वो तो इलॉजिकल था ही। मैं तो ये कह रहा हूँ यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस सिनेरियो जो लॉर्ड मैकेले 300 साल समझा पहले समझा गए, आप सोचो कि दैट इज द लॉजिक विल स्टिल अप्लाइज टुडे। बात समझ में आई नहीं है? तो जेएस वर्मा साहब ने वही बताया कि भाई यू एसेंशियली विल नीड टू अंडरस्टैंड द वेरी मोमेंट यू क्रिएट सच अ सिचुएशन इट एसेंशियली इज गोइंग टू बी इलॉजिकल। ये बेवकूफी होगी। बात समझ में आई नहीं है? इज इट क्लियर? In this regard, now the question is, sir, how exactly we can decrease cases of rape, solve cases of rape? In this regard, what is the idea? The problem that J.S. Verma, Justice Verma identified is not the punishment. It is, there is no certainty of application of punishment. The person who is committing rape is doing it with a sense of impunity. Impunity मतलब क्या? मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता. First, you have created a system जहाँ पे लड़कियों को डर लगता है रिपोर्ट करने में रेप के बारे में. Then you actually see whosoever woman essentially is going to police station, they are being treated with indignity. कहाँ गई थी, क्यों गई थी, वहाँ क्या था? Then when you look at the medical procedure, वो बहुत मतलब जो टेस्ट वगैरह होता है वो बहुत ही मतलब वो रफ सा होता है, indecent या insensitive होता है. बात समझ में आ रहा है? And then what exactly we are having? We essentially are having a legal system where a case can go on for 30 years. In this regard, look, imagine it from standpoint of a person who's a rapist. पहले तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा क्योंकि लड़की बोलेगी नहीं, वो चली भी गई तो पुलिस केस लिखेगी नहीं, वो लिख भी लेगी तो केस वहां तक पहुंचेगा नहीं, वो पहुंच भी जाएगा 30 साल तक तो मेरी एज ही नहीं बचेगी. द प्रॉब्लम इज इन uncertainty that exists with application of law. So if at all you want to solve the problem of rape, where exactly is the solution? Fast track courts, stronger police, proper infrastructure for forensic labs. At that time जब ये crime हुआ था, it used to take around 11 months for a DNA test to get results. That is, it will take you 11 months to get a result from government forensic lab with respect to DNA test. 11 महीने तो तुम्हें सब इसी में लग जा रहा है, इतनी backdated चल रहा है तुम्हारा काम. In this regard, what is the idea? If at all you want to solve the problem of what rape, it is with certainty with application of law. Deterrence बढ़ाते रहो आप. अभी आपने कर दिया, ठीक है. Now there will be capital punishment, ठीक है. Now for 18 years, if at all you are a person who might be below 18 years, but if you are committing rape, तुम्हें भी death penalty देंगे, तुम्हें भी juvenile नहीं मारेंगे, ठीक है. If at all, बाद में क्या करेंगे? रेप तो कम हुए नहीं, एनसीआरबी डेटा दिखाता है रेप तो बढ़ते जा रहे हैं. इन जैसे का ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ऑल द पीपल हु आर बिलो एज ऑफ 15, अगर आप रेप कर रहे हो तो भी आपको हम लोग डेथ पेनल्टी देंगे, ठीक है. फिर आप करो कि 7 जन्मों तक डेथ पेनल्टी देंगे, कर दो. इट विल स्टिल नॉट गेट यू रिजल्ट्स फॉर द वेरी सिंपल रीजन, नो वन इज गेटिंग कॉट, नो वन इज गेटिंग पनिश्ड. टिल द टाइम यू आर एबल टू गेट दिस प्रॉब्लम सॉल्व, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. बट होता क्या है, जनता को बाय एंड लार्ज दिखता है कि बस लॉ बन गया, न्याय हो गया. एनीवन नॉट अंडरस्टैंड द पॉइंट? Committing rape. मर्डर भी करती है। आप क्योंकि रेप के केसेस इसलिए हो जाएंगे कम क्योंकि अब कैपिटल पनिशमेंट है. आप ये कह रहे हैं ना? अच्छा, अब इसमें दो तरह के होंगे. एक जो अभी भी रेप कर रहे हैं, एक जिनको रेप आपने कम कर दिया. ऐसा समझ लो. दैट इज, अब आपने रेप को कर दिया कैपिटल पनिशमेंट. इन दिस रिगार्ड मान लेते हैं पहले 100 केसेस ऑफ रेप होते थे और अब 60 केसेस ऑफ रेप हो गए. अब देखते हैं इन 100 केसेस ऑफ रेप में पहले कितने का मर्डर भी हो जाता था, और अब हम देखते हैं इन 60 में कितनों का मर्डर हो रहा है. Now the idea is, the submission is कि इन 60 के मर्डर बढ़ जाएंगे. अब कमिंग बैक टू द प्राइमरी assumption कि इंडीड हमने 40 कम कर दिए, इंडीड हम लोगों ने 40 रेप कम कर दिए बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग डेटरेंस. इसका टेंजिबल एविडेंस भी होना चाहिए. 2014 में मैं मतलब जो उन्होंने बताया था वो एक्चुअली सच भी हो गया. जो हम लोगों ने ये निर्भया एक्ट पास किया था जिसमें बहुत ज़्यादा डिटरेंस बढ़ाया था, हमने बहुत ज़्यादा लॉस को सीवियर किया था. इवन इफ यू आर अ पर्सन हु इज बिलो 18 इयर्स, अगर आप रेप में पकड़े जाते हो जो विल स्टिल बी ट्रीटेड एज अडल्ट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, बहुत किया था. फिर कोलकाता रेप केस आया था पिछले साल, उसके बीच में एनसीआरबी डेटा फिर से लोगों ने निकाला, रेप इज ओनली इंक्रीजिंग. रेप बढ़ते गए, निर्भया के बाद भी नहीं रुके. क्यों नहीं रुके? बात समझ में? जो कह रहे थे जस्टिस वर्मा,
क्योंकि यू आर नॉट कैचिंग द क्रिमिनल्स, यू आर नॉट पनिशिंग देम अंटिल अनलेस उनके अंदर डर ही नहीं होगा कि हम पकड़े जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है 1 घंटे की सजा है या 10 साल की सजा है या सजाए मौत है? आप ये बात समझ पाएंगे नहीं। एक बहुत सिंपल सी चीज आप देखना, आप कौन से शहर से हो? बरेली, ठीक है। बरेली में आपको बहुत लोग दिखेंगे बिना हेलमेट के, यहाँ पे बहुत कम दिखेंगे। सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ पकड़ते हैं 100 रुपए का फाइन लगाते हैं, सिर्फ इतना अंतर है। अपने आप लोग हेलमेट पहनने लग जाते हैं। तो आप सोचो, सब इतनी बेसिक चीज में जब एप्लीकेशन और पनिशमेंट होता है जो सिर्फ 100 रुपए है फाइन, उसमें लोग बिहेव कर लेते हैं। अगर आप यूपी में जाओगे वो 2-2 हज़ार रुपए फाइन है। बट एक सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी है फॉर द रीजन डेटरेंस डजंट वर्क, सर्टेनिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ वर्क्स। यू गॉट द पॉइंट? अगर आप ऐसा, आप खुद सोचो, आप कितने बिहार, यूपी, जगह जगह इंडिया में डिस्ट्रिक्ट है वहां पे बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर कर रहा है, और सेम लॉस के सेम लॉ सेम व्यवस्था एवरीथिंग विद इन स्टेट, बहुत स्टेट्स में अच्छा नहीं, वो बहुत डिस्ट्रिक्ट में अच्छा नहीं कर रहा। क्यों? इट कम्स डाउन टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, जो आपका डीएम या आईपीएस होता है, वो कितनी इफेक्टिवली इंश्योर कर रहा है कि आपकी लॉ एंड ऑर्डर सही से काम कर। यू गॉट द पॉइंट? तो घूम फिर के बात यहाँ आ जाती है that where we are lacking is administrative capacity to implement it in a proper manner। वो will जरूरी है, राइट? अच्छा, इसके पीछे भी जस्टिस वर्मा ने लिखा है, when you analyze the problem, एक एनएन वोरा करके कमेटी थी 92-93 में बैठी थी, उन्होंने भी ये बात बोली थी, जस्टिस वर्मा ने बोली थी, when you analyze the problem there is a very clear lack of political will to take proper steps। क्यों? पॉलिटिशियंस के खिलाफ ही चल रहे इतने केसेस। बात समझ में आई नहीं है? अब जिसके खिलाफ चल रहा है रेप केस, उसको बोल रहे हैं कि ये व्यवस्था अच्छी कर दो ताकि रेपिस्ट जेल जाए। आप समझ रहे हैं? देयर इज अ वेरी बिग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देयर इटसेल्फ। द वेरी आइडिया दैट वी आर डिपेंड, अब हम लोग सोचते हैं कि विमेन रिजर्वेशन क्यों नहीं आ रहा पार्लियामेंट में? इन 80% से ज्यादा मेन है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि तुम एक ऐसा कानून लाओ जिससे तुम्हारे चांसेस 30% कम हो जाए टू बिकम एन एमपी। वो क्यों लाएगा? नहीं समझ। दिस इज बिग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये एक प्रॉब्लम है। नहीं नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे। कैपिटल पनिशमेंट या कुछ भी करो ताकि सोल्यूशन मिले ना। अगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो कुछ भी कर रहे हो सब बेकार है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसा सोचो, एक एक प्रदेश है जहाँ पे कम रेप है, एक प्रदेश है जहाँ ज्यादा रेप है, तो कौन सा प्रदेश ज्यादा अच्छा काम कर रहा है? जहाँ कम रेप है। आप ये बात समझ लो। आइडिया ये नहीं है कि हम लोग कितनी, मतलब उसको तो आप डाल दो जहन्नुम में डाल दो आप, ठीक है। मेंटालिटी नहीं, व्यवस्था पे, व्यवस्था में लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन। एक बात तो सेम लॉज कुछ डिस्ट्रिक्ट में विद इन बिहार, विद इन ये, वहां पुअर एप्लीकेशन है, कई अच्छी एप्लीकेशन है। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, जो आपके आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स है, वो बहुत अच्छा काम या खराब काम करते हैं। अब हम लोग सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं डाल रहे। अगर आपको पॉलिटिकल, आपको रिफॉर्म्स भी लाने हैं, दिस रिफॉर्म शुड बी टारगेटेड इनफ कि आप किस तरीके से इफेक्टिवनेस लॉ एप्लीकेशन का बढ़ाओ। अब बजट इंक्रीज करो फॉरेंसिक लैब्स का, अब बजट इंक्रीज करो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू फास्ट ट्रैक कोच का। अब मैं एक एग्जांपल, एक निर्भया फंड बनाया गया था। निर्भया फंड, आपने अगर बेसिक पता है आपको, 100 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया था। एंड द आइडिया इज वी एसेंशियली विल यूज इट फॉर सर्विलेंस कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पुलिस इन डिफरेंट स्टेट्स, सेंट्रलाइज एवरीथिंग, टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे बाय विच वी आर एबल टू डू व्हाट, वी आर एबल टू टेक इफेक्टिव मेजर्स अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन। अच्छी बात है। अब ऑलमोस्ट, मतलब सालों बीतते, कभी 2 करोड़ खर्च होता है इससे, कभी 50 लाख खर्च होता है, कभी 100 का 100 करोड़ खर्च ही नहीं होता। अब ये बात समझ में ही नहीं आई। दिस लैक ऑफ पॉलिटिकल विल टू टेक इफेक्टिव मेजर्स। जब तक वो नहीं होगा तब तक क्या फायदा? वो वाली बात है। तो वैसे भी कैपिटल पनिशमेंट नहीं देता कोर्ट ज्यादा, इसलिए अभी तक सिर्फ 57 ही कैपिटल पनिशमेंट दी। वो तो चलो एक जगह वो नहीं देता, उसके पीछे तो बहुत, आर्टिकल 21 में थोड़ा देखेंगे इसके बारे में, उसके पीछे रीजन क्या है। बट पॉइंट इज, मतलब तुम किसी को जेल में ही तुम डाल दो और उसको पता है वो जेल, मैं तो 100 रुपए के फाइन के लोग हेलमेट पहनने को तैयार है। इतनी छोटे सा डिटेरेंस अगर इफेक्टिव हो जाए, बात है कि डिटेरेंस लगता ही नहीं। कभी तुम फौजी एरिया में चला के दिखा दो बिना हेलमेट के, चला ही नहीं सकते, क्योंकि वहां इतना अच्छा वो चलता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, वो पकड़ लेगा वहीं पे। तुम भागने की कोशिश करो तुम्हें धर भी लेगा वो, राइट? तो आइडिया क्या है कि इट कम्स डाउन टू हाउ इफेक्टिवली वी अप्लाइड। आप लगा के फायदा क्या है, आप ये समझो।
एक बात बताओ, आपके खाने में नमक नहीं है, आप चीनी डाले जा रहे हो, चाले जा रहे हो, तो क्या नमक आ जाएगा? नहीं, बट जैसे आपने कहा बिहार का पूरा सिस्टम है, लेकिन यूपी में अगर हेलमेट नहीं पहना तो 2000 का फाइन। सपोज किसी का यूपी के लिए, यूपी में जिस लड़की का रेप हो रहा है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग है, वो ये डिसीजन ले लेती है कि इसको पकड़ के इसको डेथ पेनल्टी देनी है, तो वहाँ की लड़की को तो जस्टिस मिल गया। लेकिन फिर बिहार के, नहीं, लेकिन लॉस तो इसके सेम होते हैं, बट आप मेरा ब्रॉडर पॉइंट नहीं समझ रहे। ब्रॉडर पॉइंट मेरा ये है कि अगर हमें स्टेप्स लेने हैं, हमें लेने हैं हाउ इफेक्टिवली वी आर एबल टू कैच द क्रिमिनल्स, पनिश देम, प्रोटेक्ट द वुमेन, इस तरफ स्टेप्स लेने हैं। इस तरफ स्टेप्स जब तक नहीं लेंगे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, मैं ये कह रहा हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हो? क्या सीवियरिटी ऑफ पनिशमेंट बढ़ानी चाहिए? ठीक है, वी कैन हैव अ डिबेट ऑन इट, बट द पॉइंट इज व्हाट, ये चीज पे तो डिबेट ही नहीं है। ये तो आप और मैं दोनों मानेंगे ना कि ये चीज इंप्रूव होनी चाहिए, तो इस चीज पे काम नहीं हो रहा है। यूपी वाली लड़की को लेके मेरा तो एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा है, बट आई एम नॉट गेटिंग जस्टिस। अरे अगेन, ये लॉस यूनिफॉर्म होते हैं इंडिया में, इसकी आप वो टेंशन नहीं लो। तो मैं वही कह रही हूँ। बट मैं कुछ और क्या, मैं आपको कुछ और बताने की कोशिश कर रहा था। मैं कह रहा हेलमेट पहने लोग, ये मकसद है। तो आप लॉ की सीवियरिटी आपने बना दी, ना पहनने का 2000 रुपए, वहां पे तो इफेक्टिव नहीं है। ऑल दो 2000 रुपए इतनी बड़ी पनिशमेंट है, यहाँ 100 रुपए में इफेक्टिव है। नॉट बिकॉज, क्योंकि 2000 और 100 रुपए का अंतर है कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अब बात समझ दो, दैट इज द आइडिया। जो डिफेंस एरिया में वो 100 रुपए नहीं लेते, वो कहते गाड़ी आ रहेगी तुम हेलमेट लेके आओ, मतलब वो तो 100 रुपए भी नहीं लेते। वो कहे तुम जाके जहां से खरीद के लाओ, घर से लाओ, ऑटो से लेके आओ, हेलमेट लेके आओ, फिर गाड़ी आपकी ले जाई जाएगी। तो आइडिया इट इज इफेक्टिव, लोग लेके आते, आगे से ध्यान रखते, हेलमेट लेके चलना। आइडिया इट इज इम्प्लीमेंटेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अच्छे आईएएस आईपीएस क्यों चाहिए? इसीलिए चाहिए, बात समझो। हाउसएवर हाई यू मे बी, लॉ विल ऑलवेज बी अबव यू। क्या देखो, ये सब चीजें क्या करोगी जाके, लेकिन अगर सेल्फ डिफेंस में है तो वी हैव लॉज। क्यों जानना चाहते हैं? पॉइंट इज कि अगर सेल्फ डिफेंस में कोई भी एक्ट है तो उसमें यू विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू क्रिमिनलिटी। जरूर देखा जाएगा वाकई रेप हुआ, अटेम्प्ट था या नहीं था, बट अगर आपको कि आप सेल्फ डिफेंस में आपने कोई कदम लिया तो इट्स एक्सेप्टेबल। तो अभी तो रिकग्नाइज नहीं है ना, बहुत बड़ा वैक्यूम है। हाँ, मतलब मेटल रेप का अभी रिकग्निशन इंडिया में नहीं है। जस्टिस वर्मा ने तो उसके बारे में कहा था, मेडिकल रेप के बारे में। बहुत, मतलब बहुत लोगों ने कहा है मैरिटल रेप है क्या, दैट कंसेंट इज नॉट समथिंग दैट चेंजेस इफ इट ऑल योर यूनियन ऑफ मैरिज। अगर आप शादीशुदा हो तो कंसेंट अब होता ही नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। और इसका जो जेनेसिस है, दैट यू डू नॉट, दैट मैरिड मैन कैन नॉट रेप हिज वाइफ इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट वाइफ इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैन। ये अंडरलाइंग आइडिया था जिसपे बहुत सारे हमारे कानून ब्रिटिशर्स बना गए थे, विक्टोरियन मोरालिटी है ये। हटा दिया ना, हाँ हटा दिया। तो मैरिटल रेप एटलीस्ट इन माय अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं तो 5 साल बाद, 6 साल बाद रिकॉग्नाइज हो जाएगा, एंड इट विल हैपन बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब लेजिस्लेचर तो वो पॉलिटिकल विल नहीं दिखा पाएगा, बट हाँ सुप्रीम कोर्ट इसको आर्टिकल 21 में मानेगा। बट आइडिया, अंडरलाइंग आइडिया ही गलत है। मतलब अगर देखी जाए दोनों एक ही कमेटी की रिपोर्ट होगी। जस्टिस वर्मा ने भी कहा कि डेडलाइंस वाले रिपोर्ट है, उन्होंने कहा कि डेडलाइंस बढ़ा रही है और एक में कम नहीं करे थे। पर दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जो मेडिकल रेप उसे क्रिमिनलाइज करो। दोनों रिपोर्ट में दोनों बात नहीं हुई। तो इसमें गलत गलत क्या है? एक ही तो बात है दोनों। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि डेडलाइंस को आप कम करो, नहीं कह रहे वो कह रहे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जो मेडिकल रेप में कंसेंट है वो वाला फैक्टर कुछ काम ही नहीं कर रहा। दूसरा कंट्राडिक्शन है। तो अरे भाई आप समझ नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि देयर इज अ वैक्यूम ऑफ लॉ। वैक्यूम ऑफ लॉ मींस कि एक क्राइम है जिसको हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। हाँ, वो है मैरिटल रेप। ये क्राइम है जिसको हमारा लीगल सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं करता। क्यों? क्योंकि लीगल सिस्टम इसको कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन मानता है। मैं बिल्कुल वो बता रहा हूँ, लीगल सिस्टम है कि सेक्स इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज, इट कैन नॉट बी डिनाइड। तो अगर डिनाइल है और फोर्सफुली हो भी जाता है सेक्स, दैट कैन नॉट बी टेकन एज व्हाट, इट्स एन एक्ट ऑफ रेप। इट कैन बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। अब डोमेस्टिक वायलेंस थोड़ी है ये कि तो रेप, जो रेप है तो रेप है, उसको रेप मानो। वो ये चीज कहने की कोशिश कर रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में 2005 में आपसे पहले डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं था। देखो, जनरल नॉलेज अच्छी है, बट माई पॉइंट, मुझे ब्रॉड बॉर्डर पॉइंट हमारा ये उस पर फोकस करते हैं। वो फोकस ये है दैट, एनीवेज, आर्टिकल 14 क्या कहता है गाइस?
Article 14, it says state shall not deny to any person within the territory of India equality before law or equal protection of law. In this regard, we are using two terms, equality before law, which is rule of law. In this regard, equality before law means everyone is equal in the eyes of law. There cannot be any person who's having special privileges, and everyone will be equal, subjected to laws in an equal manner. No one is above the law. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस. हम लोगों ने देखा ऑल द पीपल हु कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हु आर इक्वली बैकवर्ड, उन सबको शेड्यूल कास्ट कर दिया. ऑल द पीपल हु कम फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज हु एसेंशियली आर बैकवर्ड इक्वली, उनको शेड्यूल ट्राइब कर दिया. विमेन एज अ क्लास ऑफ पीपल, ऑल विमेन आर इक्वली बैकवर्ड, उस तरह से हमने विमेन को एक कैटेगरी बनाई बैकवर्ड. बात समझ में नहीं है? इज इट क्लियर? Similar should be treated with similarly in a similar manner, and that is what equal protection of law says. Like should be treated alike without discrimination. Is it clear? This is the basis on which we have given what? We have given created provisions with respect to constitution for special protection for scheduled caste, scheduled tribe, OBC, women and children. Is it clear? एक चीज और समझ लो, at the time of independence when constitution was created, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विमेन, चिल्ड्रन, इनको बैकवर्ड खुद ही आइडेंटिफाई कर दिया था. इसके अलावा उन्होंने बोला दैट वी कैन क्रिएट अफर्मेटिव एक्शन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विमेन, चिल्ड्रन एंड अदर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. समझ में नहीं है? People who are socially and educationally backward classes, state we would want you to keep on identifying them and help them. इसी में हम लोगों ने ओबीसी को आइडेंटिफाई किया था. समझेंगे इस पूरी कहानी को, यहाँ तक समझ में? Subsequently, we have also added economic weaker section. This is something that was added after amendment of the constitution. Is it clear? अब समझना. These are people which are identified by the constitution to be backward. And this is where state has flexibility to identify new people to be backward and keep on giving them benefit. समझ में नहीं है? Is it clear? इसी में आ जाते हैं transgenders. For the people who may not be knowing, transgenders are also getting OBC reservation. I hope you have to understand the point. Is it clear? Fine. ठीक है, जो मराठा से पटेल है वो सब OBC रिजर्वेशन चाहते हैं. That is other socially educationally backward sections. यहाँ तक ठीक है? Fine. चलो. Equal protection of law is needed for progressive and equitable ends. The idea is we need to divide the resources in a manner by which we essentially are able to reach what? Reach the people who are backward. In this regard, equal protection of law is that philosophy by which we are able to ensure that people who are backward in society, they are given special treatment, special opportunities to come ahead. यहाँ तक ठीक है? Fine. Equality of opportunity means state should actively intervene to create a level playing field for socially disadvantaged group by way of affirmative action. आइडिया क्या है? हम affirmative action लेंगे जिसमें हम लोग किस चीज को ध्यान रखेंगे? What are the benefits that we can give by which we are able to uplift the person so that he gets equal access to opportunities. यहाँ पे भी हम नोट ले लेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने बोला था अफर्मेटिव एक्शन बिल्कुल दो, बट यू एसेंशियली विल नीड टू एंश्योर एनीथिंग दैट यू आर डूइंग टू गिव अफर्मेटिव एक्शन इट कंप्लाइज विद डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन. समझ में आया? ठीक है. Equal protection of law has been responsible for affirmative action in India. Something to keep in mind: President of India and Governor of a state are having a number of immunities. President and governor as such can be looked upon as an exception to rule of law in India. To put it simply, President of India के खिलाफ आप कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं ले सकते. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस भी फाइल नहीं हो सकता. गवर्नर के खिलाफ आप कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं ले सकते. गवर्नर के खिलाफ आप क्रिमिनल एक्शन भी फाइल नहीं कर सकते. यहाँ तक समझ में नहीं है? एनीवन नॉट टू अंडरस्टैंड द पॉइंट? क्राइम भगवान ना करे ऐसा करे वो, लेकिन चलो आप पूछो तो बता देता हूँ क्लैरिटी. सो बेसिकली व्हाट इट मीन्स इज कि मान लीजिए प्रेसिडेंट ने अब क्या
The idea is during the term of the president, you cannot take any criminal actions against the president. But Supreme Court has made it clear, once the president steps down, then actions can be initiated. बात समझ में आता है? तो ये हमारा है. अब ऐसा क्यों है? Why exactly we need to give president this immunity? We'll understand it when we understand president of India. To put it simply, क्योंकि president के पास mercy powers है. तो president ने बोला ठीक है, I am guilty बोल रहे हो, I pardon myself. और बताओ, you don't want that, right? To avoid that, we essentially have this provision, but it can be looked upon as an exception to rule of law, because everyone should be equal to law. Doesn't apply to president and governor. Anyone not clear about this? हाँ जी. लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की पावर्स अलग होती है, लेकिन यह है कि इम्यूनिटीज है उनके पास. पावर्स गवर्नर से अलग होती है. हाँ, आप ड्यूरिंग द टाइम दे आर इन द ऑफिस इट कैन नॉट बी, बट वो स्टेप डाउन कर जाए तब कर सकते हो. जब हम पढ़ेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर को, तो प्रेसिडेंट कभी भी हटा सकते हैं, गवर्नर को कभी भी हटा सकते हैं. और अगर क्रिमिनल चार्जेस हो जाए तो बिल्कुल हटाना चाहिए, राइट, ताकि इन्वेस्टिगेशन हो. ये वाली बात है, राइट. नहीं तो फिर केस चलाओ ना, फिर क्रिमिनल केस हटा के केस चला सकते हैं ना, ये तो मैंने बताया. कर सकते हैं. नहीं, रेट्रोस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि मैं कानून आज बना, भाई 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 प्लीज, आई एम मेकिंग अ लॉ टुडे, बट आई एम सेइंग दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम अ बैक डेट, तो वो है रेट्रोस्पेक्टिव. इज इट क्लियर? सॉरी, फ्लो, पता नहीं क्या होता, क्या फ्लो रेट, फ्लो ग्रेट, मुझे मैं पता नहीं, वो सुना नहीं कभी. हाँ, अच्छा, सॉरी, मुझे पता नहीं. गोइंग बैक, लॉ पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो? लेकिन शौक है, अच्छी बात है, पढ़ते रहना चाहिए. कमिंग बैक, तो ये देखो, वो एक अलग दुनिया हो गई. बट ये कि उनके पास इम्यूनिटीज होती है, तो क्योंकि उनके पास इम्यूनिटीज होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए उनके आप चार्जेस नहीं कर सकते. बट अगर मान लो किसी ने, तो ऑफ कोर्स आपने भारत का कानून तोड़ा है, एक्शंस कैन बी टेकन अगेंस्ट यू. अब इसमें इट कम्स डाउन टू डिप्लोमेटिक माइट ऑफ द कंट्री. अब अमेरिकन सिटीजन को, अमेरिका का कोई डिप्लोमेट करेगा तो बहुत मुश्किल है उसको पकड़ना. लेकिन अगर मान लो जिम्बाब्वे का, केनिया का करेगा तो धर लेंगे उसको. तो आइडिया कि इट कम्स डाउन टू डिप्लोमेटिक माइट जो आपकी है. देखो, फॉरेन डिप्लोमेसी, फॉरेन रिलेशन हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं. इट इज़ एज सिंपल एज जिसकी लाठी उसकी भैंस. मोर द पावरफुल यू आर, यू कैन गेट थिंग्स द वे इन विच यू वांट टू. इंडिया ने जो उनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइज वो गिराए, जो लोकेशंस पर अटैक किया, और जो पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को मारा, उसमें कुछ अंतर नहीं था. पाकिस्तान बोल रहा हूँ, अमेरिका ने पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मारा, उसमें कोई अंतर नहीं था. हमने भी उनकी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी ब्रीच की, उन्होंने भी की. उनका था टेररिस्ट को पकड़ना, हमारा भी था. वो तो अंदर ही घुस गए थे. टू एन एक्सटेंट वन कैन आर्ग्यू कि वो तो एकदम ही दे वर इंटीरियर पार्ट ऑफ पाकिस्तान में थे. ओनली थिंग इज कि वो पाकिस्तान में बम नहीं फेंक, पाकिस्तान अमेरिका में बम नहीं फेंक सकता, इंडिया में फेंक सकता, राइट. लेकिन फिर उसको पता भी कब तक फेंक सकता है. ठीक है, अभी तक तो कर लिया, हमारे लोग खुश हो गए, सीज फायर, राइट. हाँ, लेट्स सी क्या है, पता चलेगा. देखो, नुकसान तो उनको बहुत हुआ है, ऐसा नहीं है. या तो बस कराची देख के क्या हुआ? तो बात है, हमें तो अपना ही दिखेगा ना, उनका भी बहुत हुआ है. वो अपना छुपा दे, हम अपना छुपा दे, राइट. तो नुकसान हुआ है, मे बी, नो डाउट. वो भी क्या हल्के थोड़ी, वो चाइना का सपोर्ट है, टर्की का सपोर्ट है. हाँ, तो मेन तो ये ना. कमिंग बैक, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पास ये इम्यूनिटीज है. सुप्रीम कोर्ट on Article 14. Supreme Court has held where equals and unequal are treated differently, Article 14 does not apply. इसका कहने का मतलब समझना. If at all we are talking about people who are backward, people who are forward, rule of law does not apply. This is what Supreme Court is trying to say. But equal protection of law do apply. Is it clear? Equal protection of law is ways by which we are able to provide affirmative action. Article 14 permits reasonable classification of persons, objects, transactions by law. Classification should not be arbitrary. Classification should not be artificial. Classification could not be evasive. Arbitrary मतलब ये कि it should be based on logic. Illogical नहीं होना चाहिए. That is backwardness. Classification cannot be artificial.
कि आपने जबरदस्ती बना दिया जस्ट टू गिव बेनिफिट टू पीपल हु आर फॉरवर्ड क्लास, जैसे मैंने बताया ना टॉप 0.1% लोगों को दे दिया रिजर्वेशन, वो नहीं होना चाहिए. Then evasive means that you essentially are trying to give benefit to someone else but you are being evasive about it. वो क्या है अभी हम समझेंगे. Write down doctrine of reasonable classification. Doctrine of reasonable classification. Doctrine of reasonable classification. ब्रैकेट में doctrine of equality. Doctrine of equality. Doctrine of reasonable classification. Doctrine of equality. Slash में doctrine of equality. This is a doctrine developed by Supreme Court of India. This is a doctrine developed by Supreme Court of India. This is a doctrine developed by Supreme Court of India. Supreme Court exercises this doctrine. This is a doctrine developed by Supreme Court of India. Supreme Court exercises this doctrine. This doctrine to test constitutional validity. To test Supreme Court exercises this doctrine to test constitutional validity of affirmative actions taken by state. Of constitutional validity of affirmative actions taken by state. Affirmative actions taken by state for backward classes of people. For backward classes of people. For backward classes of people. Right? In this test, three conditions must be fulfilled. In this test, three conditions must be fulfilled. In this test, three conditions must be fulfilled. First, क्लासिफिकेशन, या क्लासिफिकेशन का मतलब ये है क्लासिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटी, जैसे ट्रांसजेंडर बैकवर्ड कम्युनिटी का क्लासिफिकेशन, एससी क्लासिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटी, राइट. क्लासिफिकेशन must be founded on intelligible differentia. Classification should be founded on classification should be founded on intelligible differentia. Classification should be founded on intelligible differentia. Underline intelligible differentia. Within the first point, it means dash dash. It means, right, class must be, class से मतलब group of people identified. Class must be grouped on definite and defined criteria. Class must be grouped on definite / defined criteria. Definite / defined criteria. समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल गरीब नहीं, बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन, राइट. Idea is it should be as clear and objective as possible, right? Second dash, clear distinction must be made, must be established. Clear distinction must be established
between those who are included in the group and those who are excluded. Clear distinction must be established between those who are included in the group, between those who are included in the group and those who are excluded, and those who are excluded. समझ में आया? For example, that example I gave you कि बिहार में every person should be given 1 lakh rupees. Now you are not able to give us a clear distinction between who are getting included and who are getting excluded. समझ में आया नहीं है? Fine? ठीक है. अब इसमें वन ऑफ द थिंग्स जो हमने उसमें बात की थी, चलो इसको आगे बता दें. सेकंड पॉइंट लिखना, एग्जांपल डिस्कस करेंगे. सेकंड कंडीशन, class identified and backwardness identified, class identified and backwardness identified must have a rational nexus, must have a rational nexus, nexus मतलब relationship, sorry, national nexus with the objective, with the objective of affirmative action, of affirmative action, of affirmative action. ऑब्जेक्टिव को अंडरलाइन कर देना, रैशनल नेक्सस को अंडरलाइन कर देना, रैशनल नेक्सस एंड ऑब्जेक्टिव in bracket just for your clarity. Benefit created under affirmative action, write down, benefit created under affirmative action, benefit created under affirmative action should be designed in a manner, benefit created under affirmative action should be designed in a manner by which backwardness identified is getting resolved, backwardness identified is getting resolved, backwardness identified is getting resolved, bracket close. समझ में आ गया? You're not able to write and the affirmative action is I'm going to give you a water bottle, not linked, not related, not linked, doesn't make sense. Is it clear? Fine. सबने लिख लिया? थर्ड पॉइंट, ये जो थी डॉक्ट्रिन, ये सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ऐड की थी. ये क्या थी? बहुत सिंपल है, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन आर्बिटरीनेस. व्हाट डज इट मीन? समझ लो, देन आई डिक्टेट यू. डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन आर्बिटरीनेस. सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम ये मान भी लेते हैं दैट द फर्स्ट टू कंडीशंस आप मीट कर रहे हो, बट देन व्हेन वी एसेंशियली एनालाइज द पॉलिसी वी फाइंड दैट यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग इनडायरेक्टली which you cannot do directly. We are able to see that there is an arbitrariness, lack of logic by which you're trying to do things because you know directly you can't do that. For example, one of the things that is being argued with respect to Citizenship Amendment Act, पहला तो आपने बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान को आइडेंटिफाई किया. तो पॉइंट इज प्लीज टेल अस हाउ एग्जैक्टली आर यू डिफाइनिंग बैकवर्डनेस. अगर बैकवर्डनेस आपकी है रेफ्यूजीज, इन दिस रिगार्ड इन 3 कंट्रीज के ही क्यों, श्रीलंका के क्यों नहीं, भूटान के क्यों नहीं, इसके क्यों नहीं? मेरी बात समझ में नहीं आ रही? अगर आपकी बैकवर्डनेस है दैट वी एसेंशियली आर हैविंग कंट्रीज व्हिच आर हैविंग अ स्टेट रिलीजन, इन दिस रिगार्ड श्रीलंका का स्टेट रिलीजन बुद्धिज्म है, उनको क्यों नहीं बेनिफिट दे रहे आप? बात समझ में नहीं आई? एंड इफ एट ऑल योर इंटेंट इज दैट यू एसेंशियली वुड वांट टू व्हाट, आइडेंटिफाई कंट्रीज जो दैट इज अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट था. व्हाई एग्जैक्टली अफगानिस्तान इज इंक्लूडेड? क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान समझ में आता है. हाउ एग्जैक्टली अफगानिस्तान इज इंक्लूडेड? किसका नहीं समझ में आता? इफ इट इज विद रिस्पेक्ट टू परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज, दैट इज माइनॉरिटीज इन दीज कंट्रीज हैव बीन सब्जेक्टेड टू वायलेंस. आपका म्यांमार में आपका तमिल पॉपुलेशन है, योर
Sri Lanka, they are being subjected to a lot of atrocities. Only commonality that we are able to see is all of them are Muslim countries, and the benefit that you're creating is going to be what? It is going to be something that will keep Muslims away from the benefit. आई कंसेंट जो बेनिफिट आप इस तरीके से देना चाहते हो कि मुस्लिम्स को ना मिले बेनिफिट इन दिस रिगार्ड नॉट ओनली इट इज फेलिंग ऑन द फर्स्ट टेस्ट पहला टेस्ट क्या था that there has to be a proper logic with respect to how exactly you're defining backwardness यहाँ तो लॉजिक की कमी दिख रही है दूसरा जो थर्ड पॉइंट है यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग इनडायरेक्टली दैट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली आप ऐसे तो बोल नहीं सकते कि हम लोग मुस्लिम्स को नहीं देंगे बेनिफिट तो आप इनडायरेक्टली कह रहे हो नहीं हम लोग जो मेजोरिटी रिलीजन जो उन कंट्रीज में है उनको नहीं दे रहे उनकी कंट्रीज के माइनॉरिटीज को दे रहे इट्स एन इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग कि मुस्लिम्स को नहीं दे रहे बात समझ में नहीं है तो पहली कंडीशन पे जो हरीश साल्वे है दुनिया मतलब इंडिया के सबसे बड़े लॉयर है ही इज अमंग द टॉप लॉयर्स ऑफ द वर्ल्ड बट राइट नाउ इज द टॉप मोस्ट लॉयर ऑफ इंडिया ही इज फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड ही इज आर्ग्यूइंग सर चॉइस ऑफ कंट्रीज हु शुड बी given the benefit is a matter of foreign policy and on matter of foreign policies we essentially do not have to worry about constitution it's the exclusive right of government of India तो हमें जस्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं है कौन सी कंट्री इंक्लूड हो रही है एक्सक्लूड हो रही है नंबर वन नंबर टू आप बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टेकिंग अवे सिटीजनशिप्स ऑफ एनी पर्सन इन इंडिया वी आर टॉकिंग अबाउट गिविंग सिटीजनशिप मान लेते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट मुस्लिम्स जो इस कंट्री से आ रहे हैं उनको सिटीजनशिप नहीं मिल रही बट जो मुस्लिम्स है वो तो इंडिया के सिटीजन है ही नहीं ना तो उनके ऊपर तो फंडामेंटल राइट्स लगेंगे नहीं ना नहीं समझ में एनीवन नॉट टू अंडरस्टैंड द पॉइंट द आइडिया इज द वे इन विच वी हैव क्रिएटेड अ पॉलिसी वी आर गिविंग सिटीजनशिप वी आर नॉट टेकिंग अवे सिटीजनशिप एनआरसी से हो सकता है ये सीए से नहीं हो सकता बात समझ में नहीं है इन दिस रिगार्ड व्हाट इज द आइडिया ये है दैट वी essentially do not have to worry about violation of fundamental rights because we are giving citizenship not taking away fundamental rights of Indian citizens मेरी बात समझ में नहीं आई What exactly is this arbitrariness? उन्होंने बोला if it on ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है इसके इस कंडीशन की एब्सेंस में बताओ व्हाट इज आर्बिट्ररी बात समझ में नहीं आई अगर हम लोग ये कह रहे हैं चॉइस ऑफ कंट्री में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता क्योंकि फॉरेन पॉलिसी का मैटर है अब ये चीज अगर एस्टैब्लिश हो गई मतलब ये पॉलिसी में कुछ गलत नहीं है अब बता दो इस पॉलिसी में आर्बिट्ररी क्या है तो और तो कुछ बचा ही ना आर्बिट्ररी इतना ही तो था कि मुस्लिम्स को बेनिफिट नहीं मिलेगा और द पॉइंट इज मुस्लिम्स को इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान को हमने आइडेंटिफाई किया एनीवन नॉट टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ प्रैक्टिस है राइट तो ये भी एक कंट्रोवर्सी चली थी चल रही है केस तो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में मेक सेंस राइट डाउन थर्ड कंडीशन सुप्रीम कोर्ट एडेड दिस कंडीशन सुप्रीम कोर्ट added this condition afterwards Supreme Court added this condition afterwards. Supreme Court has held under doctrine of equality. Supreme Court has held within the third point under doctrine of equality. All such actions of state will be subjected to all such actions of state will be subjected to doctrine of non-arbitrariness doctrine of non-arbitrariness doctrine of non-arbitrariness doctrine of non-arbitrariness it means if court finds in the substance of state's action if court finds in the substance of state's action state is indirectly attempting to undertake an arbitrary action then
then court will hold such action. Court will hold such action to be unconstitutional. To be unconstitutional. To be unconstitutional. Make sense? ठीक है? This brings us to Article 15. ये देख लो, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ कंसेप्ट दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंग्लैंड, डाइसी का था, जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज समथिंग दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में. Something to keep in mind, equal protection of law in America is narrower in concept. Why? For the very simple reason, they brought it mainly for racial equality. Special provisions that are being created for the people who are African Americans, by which we are able to uplift it. इंडिया का बहुत वाइड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. वाई? बिकॉज वी कीप ऑन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकवर्डनेस एंड वी कीप ऑन क्रिएटिंग अफर्मेटिव एक्शन टू रिमूव दैट बैकवर्डनेस. बीट विद रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन, अब जाओ मेरे को मिड डे मील दो. क्यों दे? क्योंकि आप सबको देते हो, बच्चों को देते हो. आइडिया कि आपको डिनाई कर दिया जाएगा, क्योंकि child is that backwardness that we have identified. Child nutrition is the backwardness and we are trying to solve that problem. समझ में आई नहीं आई? Is it clear? In the same manner, we have reservation for women in Panchayati Raj. In the same manner, we have reservation for transgenders. In the same manner, we have special schemes for different backward sections. For example, priority sector lending, पता होगा. Priority sector lending is a way by which we are able to identify people who are backward and हम credit से उनको help करने की कोशिश कर रहे हैं. And that is why our equal protection of law is lot wider than American system. समझ में आ गया? Fine. Used as a general norm, that is, whenever you look at constitutions around the world, you see we have rule of law present in that constitution. 99.99% constitution में rule of law होगा ही होगा. On the other hand, when we talk about equal protection of law, it is not mentioned in all constitutions. In fact, it is mentioned in very few constitutions. But at the same time, even for constitutions which are not mentioning it, it doesn't mean such countries are not practicing it. For example, Scandinavian countries, developed countries, वहाँ पे you have what is called as unemployment compensation. What exactly is unemployment compensation? You're looking at society, you're looking at one form of backwardness called unemployment, and you're trying to solve it by giving them affirmative action, that is free income. Are you understand? ये पता होगा ना, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन होता है डेवलप्ड कंट्रीज में. अगर आप सोचो एक तरह का यही तो है, और क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. In the same manner, many of the countries are having free healthcare for people who essentially are poor. Many developed countries are having it, free healthcare. इलाज कराओ फ्री में. What exactly it is? Equal protection of law. You are having what? In many schools, including America, you are having what? Free education for children. उनकी public schools are very good. In this regard, again, it's an equal protection of law. किसको नहीं समझ में आ रहा? Right? It is a negative approach. It is a positive approach. इसका मीनिंग बताओ. Negative approach ये that state you cannot take an action which violates rule of law. मैंने बना दिया, वेल सलमान खान चाहे जितनी तेज गाड़ी चलाए और जिसके ऊपर चलाए हमेशा ड्राइवर को ब्लेम किया जाएगा. दैट इज अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ. उसकी तो किस्मत थी. एक मेरा दोस्त है शार्दुल, वो सलमान भाई का बहुत बड़ा फैन है. बड़े बड़े पोस्टर लगा के रखा है, ब्रेसलेट पहन के चलता है. राइट. मैं तो कुछ शर्म नहीं आती, सलमान खान का फैन है. बोले क्या प्रॉब्लम है सलमान भाई में? मैंने बोला भाई देख गाड़ी चलाई होगी. बोले वो उनका किस्मत था भाई की गाड़ी के नीचे है. मैंने बोला कैसे? बोलता सड़क पे सो रहे थे, किसी भी गाड़ी के नीचे आ सकते थे, कोई पूछता भी नहीं उनके बारे में. आज वो न्यूज है. क्यों? क्योंकि सलमान भाई की गाड़ी के नीचे आए तो आज न्यूज में कवर हो रहा है उनका न्यूज. बात तो सही है. सबसे सही है बिग बॉस. बिग बॉस क्यों सबसे अच्छा लगता है मुझे, बताओ क्यों? बिग बॉस इज ए शो जहां सलमान खान लेसन्स दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज मॉरल कंडक्ट, मॉरल. वो सारे कंटेस्टेंट्स को बता दे दिस इज द वे यू आर, दिस इज अनएक्सेप्टेबल. फिर वो जैकेट फेंक रहे, क्या सलमान खान बता रहे क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से आपको रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए. तो डिमांड कोई है तो नहीं सलमान भाई का फैन. वो तो यार नो वन किल्ड दैट ब्लैक बक. ब्लैक सलमान भाई बस गुजर रहे थे और ब्लैक बक गिर गया जस्ट बिकॉज उनके पास वेपन मिली उनकी गाड़ी में. इसका मतलब कि सलमान भाई ने मारा है क्या?
बात कर रहे हो तो नेगेटिव, तो नेगेटिव अप्रोच क्या है? दैट you essentially cannot create a law by which you essentially are, that is violating rule of law. आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते जहां आप इक्वालिटी बिफोर लॉ को तोड़ रहे हो. दैट मीन्स वी आर पुटिंग अ लिमिटेशन ऑफ पावर ऑफ द स्टेट. जब हम बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, हम कह देते हैं देखिए समाज में दे आर पीपल हु आर unequal, they are backward, you need to create special policies to bring them forward. That means until unless you create special provisions, how exactly they can come forward? That means we are putting positive obligation on state that you need to keep on creating policies, keep on creating laws, keep on creating provisions by which you are able to uplift the people who are backward. अब वो चाहे मुद्रा लोन हो, चाहे वो दैट इज रिजर्वेशन हो, चाहे वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो, वी इसेंशियली आर इंसेंटिवाइजिंग स्टेट. वी वांट स्टेट टू कीप ऑन टेकिंग मेजर्स बाय व्हिच यू आर एबल टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट. लॉजिक ठीक है नहीं ठीक है? इज इट क्लियर?